हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आईएससी गाइड। अब हम लोग चालू करने वाले हैं आर पार्ट 2 ऑफ रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग, which focuses on forgetting and how to improve memory. Important part है still. We have already covered the memory processes and everything related to memory in part 1. तो go and watch part 1. I'll pin it down in the comments below. पहले वो देख के आओ, because unless you understand that, everything that I say in this वो तुम नहीं समझ पाओगे 100%. Okay? I've discussed the PDP model in detail, ढंग से एकदम प्रॉपर, इवन आउट ऑफ सिलेबस एग्जाम्पल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स के साथ, in order to make it more fun and interactive. So if you want to learn about the Jennifer Aniston neuron, for example, वो वीडियो जाके देखो. Alright, let's get started quickly with this. ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसके लिए. We'll make this video quick so that you can always spend all your time on revision if you're watching this during your exams. ठीक है, let's get started right now. How do we forget? तो forget करने के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देखे रखे, अलग अलग थ्योरीज है that are persistent through psychology. तो सबसे पहला and the easiest to understand in my opinion is the trace decay. तो बेसिकली ट्रेस डिके क्या बोलता है? जब हम लोग का कोई इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन आवर मेमोरी, हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे, तो इट टेंड्स टू डिके. मेमोरी फेड्स ओवर टाइम इफ इट इज नॉट रिहर्स्ड और यूज्ड ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ मेमोरी प्रोसेसेस इन द ब्रेन. तो हमारा लेट्स से फॉर एग्जांपल एक हैबिट कैसे फॉर्म होता है, या फिर हाउ कैन वी डू थिंग्स ऑटोमेटिकली. हम लोग टाइप कर पाते विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड्स. हाउ? ड्यू टू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तो जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाते हैं, the neurons in our brain which are responsible for our typing actions get strengthened. Okay, and then वो strengthening की वजह से we are able to automate stuff. And जब वो strengthen होता जाता है, we remember it better. इसके लिए बोला जाता है constant revision is needed. तो constant revision इसी के लिए बोला जाता है क्योंकि actually your neurons का connections get strengthened, जिसकी वजह से you'll be able to recall information better in your exams. तो ट्रेस डिके में व्हेन यू आर नॉट रिवाइजिंग इंफॉर्मेशन या फिर यू आर नॉट यूजिंग इंफॉर्मेशन, तो योर मेमोरी फेड्स, क्योंकि वो जो न्यूरल कनेक्शंस है बिटवीन योर न्यूरॉन्स इज गेटिंग वीकेंड. ओके, एग्जाम्पल क्या हो गया? फॉरगेटिंग द नेम ऑफ अ पर्सन यू मेट 3 months अगो. एक ही बार मिले 3 months अगो, उसका नाम एक बार पूछा था, कभी बार में यूज नहीं आया, एंड देन आफ्टर 3 months ही कम्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड सेज हाय, ही रिमेंबर्स योर नेम बट तुम्हें याद नहीं रहता, राइट? वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, ऑल ऑफ अस हैव बीन इन इट. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेस डिके कि सिंस यू हैड नॉट यूज दैट इंफॉर्मेशन इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, you forgot it. That's as simple as that. Next is retrieval failure. Also, only a small percentage of you that watch my videos are actually subscribed. So, if you like the video, please consider subscribing. It's free and you can always change your mind later. Enjoy the video. Sometimes memories are stored but cannot be accessed, often due to lack of proper cues. So, whenever we remember information, ठीक है, हम लोगों ने इसमें भी देखा था एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल में, when information is passed on from short term memory to long term memory, that is done through the action of elaborative rehearsal. So elaborative rehearsal में you form associations and you understand the information that is given, right? So if that understanding, if that association is weak, वरना it is absent, तो जिस चीज से तुमने associate किया था, you will have trouble remembering this information. Okay, इसको tip of the tongue बोला जाता है इसके लिए. So you can remember the name, for example, of a specific celebrity. Movies याद आ जा रही है उसकी, उसके character के नाम याद आ जा रहा है, but you cannot remember the name of the actor. You can remember everything about him. उसके कितने बच्चे हैं, you can remember the name of the wife and everything, but you cannot remember the name of the celebrity. इसको tip of the tongue phenomenon बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? There is absence of proper cues. एक proper cue जब तुम्हें hint मिलेगा, for example, you'll instantly be able to recall कि कौन सा celebrity है. तो जैसे कोई सामने वाला बोलेगा कि ये celebrity है क्या, you'll instantly recall, हाँ वही वाला celebrity है. तो what is happening here? You remember the name, ठीक है, that is still in your memory, बट उसको रिट्रीव करने में यू आर फेलिंग. तो लॉन्ग टर्म मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में वापस लाने में देयर इज सम इशू.
इसको बोला जाता है टिप ऑफ द टंग फिनोमेनॉन. नेक्स्ट इज इंटरफियरेंस. इंटरफियरेंस एज द वर्ड सजेस्ट, किसी चीज में रुकावट. ओके तो दो टाइप के इंटरफियरेंस होते हैं, रेट्रोएक्टिव एंड प्रोएक्टिव. तो रेट्रोएक्टिव इंटरफियरेंस में क्या होता है, जो हम लोग न्यू इंफॉर्मेशन सीखते हैं दैट ब्लॉक्स और डिसरप्ट्स ओल्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग रिट्रीव्ड और रिकॉल्ड. ठीक है, तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल मेरा फोन का पासवर्ड चेंज किया है, चेंज माय फोन पासवर्ड, उसकी वजह से आई फॉरगॉट द ओल्ड पासवर्ड ऑफ माय फोन. नाउ करेंटली यू नो द पासवर्ड टू योर फोन. नाउ रिमेंबर इससे पहले क्या था एंड देन उससे पहले क्या था. आई एम श्योर मे बी मैक्स टू मैक्स व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो बैक 4 और 5 पासवर्ड्स. उससे ज्यादा मुझे याद नहीं है कि मैंने पहले क्या रखा था. आई कैन ओनली मेक गेसेस, बट कॉन्क्रीटली मुझे सिर्फ लास्ट 3 और 4 पासवर्ड्स ही याद हैं. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. न्यू इन्फॉर्मेशन blocks or disrupts recall of old information. This is called retroactive interference. Next is proactive interference. इसका opposite ही है basically. तो यहाँ पे old information is blocking new information. तो for example, मेरा एक नया दोस्त बना. He has his name starting from R and I had a old very good friend. उसका भी नाम R से ही था. तो व्हाट हैपेंस इज, जो मेरा नया फ्रेंड है मैं उसको बार बार अपने पुराने फ्रेंड के नाम से बुला रहा हूँ. दिस इज प्रोएक्टिव इंटरफियरेंस. द ओल्ड इंफॉर्मेशन विच इज द नेम ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड इज इंटरफियरिंग विद द नेम ऑफ माई न्यू फ्रेंड, जिसकी वजह से आई एम ऑलवेज मेकिंग द मिस्टेक एंड कॉलिंग माई न्यू फ्रेंड बाय द नेम ऑफ द ओल्ड फ्रेंड. समझा? सिंपल सा है, इतना ही समझने की जरूरत है. यू कैन इलैबोरेट इट अ लिटिल बिट मोर अगर ज्यादा मत आया, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये जितने भी फॉरगेटिंग की चीजें कर रहे हैं, इट कैन एंड प्रोबेबली विल कम इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी. यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा टाइप का फॉरगेटिंग हो रहा है. ट्रेस्ड के, रिट्रीवल इनहिबिशन, इंटरफियरेंस, या फिर अभी हम लोग एमनीशिया ये सब देखेंगे क्या हो रहा है एग्जैक्टली. यू हैव टू आइडेंटिफाई इट. ओके, नेक्स्ट इज एमनीशिया. दो टाइप के एमनीशिया है. बिफोर वी डिस्कस दीज टू टाइप्स ऑफ एमनीशिया, एमनीशिया इज ब्रॉट अपॉन by an injury or some traumatic event. ठीक है, कार एक्सीडेंट हो गया या फिर यू फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, कोई भी टाइप का हेड इंजरी. ओके, ये एमनीशिया का ट्रिगर होता है. ऑलराइट, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो रेट्रोग्रेड एंड एंटीरोग्रेड एमनीशिया है, दीज बोथ रिवॉल्व अराउंड दैट स्पेसिफिक ट्रॉमेटिक इवेंट. तो रेट्रोग्रेड एमनीशिया में क्या होता है, तो जो भी वो इंजरी एंड ट्रॉमा से पहले के मेमोरीज हैं, we forget them. Okay, there is a loss of past memories. So if for example you had a car accident, so you cannot recall events from the past year, so the information is forgotten before the injury or trauma. That is called retrograde amnesia. The second is anterograde amnesia. ये इसका opposite होता है. Here information cannot be memorized आफ्टर द इंजरी. तो जो इंजरी है वरना ट्रॉमेटिक इवेंट है, उससे पहले का सारा मेमोरीज आई स्टिल हैव, बट आफ्टर दैट ट्रॉमेटिक इवेंट आई एम अनेबल टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ न्यू मेमोरी. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी देखे रखा है, आई कैन नॉट रिमेंबर द नेम्स ऑफ न्यू पीपल, कि मैं उनसे मिला भी हूँ कि नहीं. आई कैन नॉट रिमेंबर इफ आई हैव एंटीरोग्रेड एमनीशिया, बट आई कैन वेरी वेल रिमेंबर माई ओल्ड फ्रेंड्स एंड माई ओल्ड फैमिली. ओके, तो ये एंटीरोग्रेड एमनीशिया होता है. नेक्स्ट हम लोग को दो डिजीजेस देके रखे. ओके, दो डिजीजेस है, अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया. तो हम लोग देखने वाले पहले अल्जाइमर्स क्या होता है. अल्जाइमर्स इज अ प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर कॉजिंग सिवियर मेमोरी लॉस, कॉग्निटिव डिक्लाइन एंड पर्सनालिटी चेंजेस. ऑफ कोर्स हम लोग फॉरगेटिंग देख रहे हैं तो मेमोरी लॉस आएगा इधर. तो अल्जाइमर्स इज ए न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर. दिस इज ए कीवर्ड, लिखना इंपॉर्टेंट है. न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर मींस कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, दे स्टार्ट टू डिके, डाई एंड डीजेनरेट. ओके, जो न्यूरॉन्स रहते हैं, आर सेल्स इटसेल्फ, वो ही डिके एंड डाई होने लग जाता है इन दिस अल्जाइमर्स डिजीज. इसका नॉर्मल ऑनसेट मींस कि ये नॉर्मली कौन से टाइम से लोगों को इफेक्ट करना चालू करता है. तो द नॉर्मल ऑनसेट इज इन पीपल एज 65 प्लस. तो 65 प्लस जो सीनियर सिटीजन्स रहते हैं
नॉर्मली उनको अफेक्ट करता है. इफ 65 ईयर्स से पहले हो रहा है, इट इज कॉल्ड अर्ली ऑनसेट. वरना 65 ईयर्स के बहुत बाद हो रहा है, लेट्स से 90 वरना 100 ईयर्स पे, दैट इज कॉल्ड लेट ऑनसेट. ओके, अब इसका कॉज क्या होता है? एमेलॉइड प्लैक्स एंड टाउ टैंगल्स. ये कीवर्ड्स हैं, बट इवन इफ यू कैन नॉट रिमेंबर, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, इतना डेप्थ में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. यू कैन ऑलवेज राइट जस्ट ब्रेन अबनॉर्मैलिटीज. तो ये जो एमेलॉइड प्लैक्स एंड टाउ टैंगल्स होता है, इफ यू राइट दीज, तो ये दिस विल ओनली इम्प्रेस द एग्जामिनर, राइट? तो एमेलॉइड प्लैक्स एंड टाउ टैंगल्स जो होते हैं, दे डू नॉट लेट न्यूरॉन्स कम्युनिकेट. तो न्यूरॉन्स के लिए ऑफकोर्स कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इफ दे डू नॉट कम्युनिकेट, they will not be able to do anything. For thinking, for memory, everything, we need a system of neurons, as we saw in the PDP model. तो अगर एक इंडिविजुअल न्यूरॉन ही है, इट विल नॉट फंक्शन नॉर्मली एंड इट विल either be damaged or it will die. Okay, remember, no neuron is an island. Island नहीं होता, it is an interconnected railway system, if you have to say that. ठीक है, समझने के लिए, अगर समझना है तो समझ लो. It is a system of neurons that does anything. क्योंकि न्यूरॉन, a single neuron at its base is very simple. Then इसका सिम्टम क्या है? Significant memory loss, difficulty with familiar tasks. क्यों familiar tasks unfamiliar हो जा रहे हैं? क्योंकि उनका कोई मेमोरी बाकी नहीं रह रहा है, राइट? लैंग्वेज डिफिकल्टीज, अगेन लैंग्वेज इज लर्नड तो उसका मेमोरी जा रहा है. प्रॉब्लम सॉल्विंग हार्डशिप. प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ से आता है? If you remember semantic memory stores our factual information which is not related to any subjective experience. Since वो subjective experience से related नहीं है, it is useful in reasoning and logic. तो problem solving में hardship आ जाता है, since our semantic memory is of course also affected, and changes in mood and personality. तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग थोड़े हमारे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भूल रहे हैं, वरना डिफाइनिंग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस भूले जा रहे हैं, राइट? दैट डिफाइंड अस, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा मूड एंड पर्सनालिटी में भी चेंज आ रहा है. दैट इज अल्जाइमर्स डिजीज. फॉर डिमेंशिया सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स करना ही बोला है, बट ऑफकोर्स एक लाइन का डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो डिमेंशिया इज एन अम्ब्रेला टर्म. हम लोग बोलते हैं डिमेंशिया इज अ डिसऑर्डर, नहीं, it is an umbrella term for a number of brain disorders leading to decline in memory, thinking and social abilities. And dementia के अंडर ही अल्जाइमर्स आता है. Okay? It is a part of dementia itself. ये एक अम्ब्रेला टर्म है, बहुत सारे न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स आता है अंडर डिमेंशिया, एंड अल्जाइमर्स इज द मोस्ट कॉमन. इसके सिम्टम्स देखते हैं, अगेन सेम सिम्टम्स है. वाई डिमेंशिया के अंडर अल्जाइमर्स आता है? तो ऑफकोर्स डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स के सिम्टम्स सेम ही होंगे. ओके, तो डिमेंशिया का आइडेंटिफिकेशन के लिए अगेन आ सकता है इन अ केस स्टडी, एंड अल्जाइमर्स का भी आ सकता है. ओके, दैट वाज द फॉरगेटिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर. देख रहे हो, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत छोटे छोटे में भी खत्म हो जा रहा है. अभी देखेंगे टिप्स हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी. तो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? मे बी देर इज इन अ केस स्टडी द चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग विथ एग्जाम्स एंड उसको चीज़ें याद नहीं रह रही, तो उसको स्टेप्स दो, वरना उसको बताओ कि हाउ ही कैन इम्प्रूव हिज मेमोरी. ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, विच आई हैव सीन इन अदर पेपर्स. तो हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी, द फर्स्ट स्टेप गिवन इन योर सिलेबस इज अटेंशन. टीचर्स भी ये बोलती रहती है ऑल द टाइम. Focusing fully on the material increases the chance of it being encoded into long term memory. अगर वो एक चीज पे ढंग से फोकस कर रहे हो, ओके, ऑल योर कॉग्निटिव लोड इज डिवोटेड टू दैट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, तो बेटर रजिस्टर होगा इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी. वाई? बिकॉज यू विल बी एबल टू मेक बेटर एसोसिएशंस. ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेट करके इफ यू रिमेंबर पास्ट में क्या सीखा है, यू विल बी एबल टू मेक बेटर एसोसिएशंस, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म मेमोरी में बेटर याद होगा. सेकेंडली, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल स्टडीइंग हेल्प्स इन मेमोरी रिटेंशन. यहाँ पे अगेन जो हमारा कॉग्निटिव लोड रहेगा, इफ देयर आर डिस्ट्रैक्शंस इन द रूम, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर स्टडीइंग, तो हमारा कॉग्निटिव लोड इज डिवाइडेड. हम लोग एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मेमोरी में स्टोरेज है वो एकदम प्रॉपरली नहीं हो रहा है. ओके, इसके लिए अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस इज नेसेसरी. एग्जाम्पल इज स्टडिंग इन अ क्वाइट रूम,
विथ फोन ऑन साइलेंट, तो जितने भी हमारे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं वी आर एलिमिनेटिंग देम। तो ये अटेंशन वाला पॉइंट हो गया। सेकेंड इज यूज ऑफ इमेजरी। इमेजरी यहाँ पे इज नॉट द लिटरेचर वाला इमेजरी, इमेजरी इज द विजुअलाइजेशन एंड द इमेजिनेशन ऑफ थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल हम व्हाट आई ऑलवेज ट्राई टू डू, मैं डायग्राम्स के थ्रू सिखाना पसंद करता हूँ, राइट। तो what that helps with is exactly imagery. You are able to visualize that diagram in your mind then. So forming mental pictures makes abstract or complex information easier to recall. तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था, दिस पीडीपी मॉडल इज अ बिट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बट हम लोग ये डायग्राम के थ्रू इजीली समझ पाए थे। विजुअलाइजिंग इंफॉर्मेशन एक्टिवेट्स मोर एरियाज ऑफ द ब्रेन, स्ट्रेंथनिंग द मेमोरी। ओके, हम लोगों ने देखा था जितना हम लोग वो एक चीज को प्रैक्टिस करेंगे हमारे न्यूरल कनेक्शंस और ज्यादा स्ट्रेंथन होते जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को ज्यादा याद रहता है, राइट। वी डिस्कस दैट बिफोर इवन इन ट्रेस डीके। तो यहाँ पे सेम चीज है, हम लोग ज्यादा कॉग्निटिव लोड एक चीज पे अगर डिवोट कर रहे हैं तो वील बी एबल टू रिमेंबर इट मोर विविडली, हम लोग को ज्यादा अच्छी तरीके से याद रहेगा। एग्जाम्पल, रिमेंबरिंग अ ग्रोसरी लिस्ट बाय इमेजिनिंग देम प्लेस्ड ऑन योर किचन काउंटर। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ लिस्ट यू विल इमेजिन आपके घर का किचन काउंटर, ब्रेड है, एग्स रखे हुए हैं, जैम रखा हुआ है, नटेला रखा हुआ है, सीरियल रखा हुआ है, मिल्क है, एवरीथिंग इज प्लेस्ड ऑन द काउंटर। तो व्हेन यू गो टू द ग्रोसरी स्टोर, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली टेकिंग आउट द लिस्ट एंड रीडिंग इट ऑफ इट, आप विजुअलाइज कर सकते हो। ओके, इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर वॉज माई ब्रेड, इन द बॉटम राइट कॉर्नर वॉज माई नटेला, इन द टॉप राइट कॉर्नर वॉज माई सीरियल, ऐसे करके यू कैन विजुअलाइज। Okay, and जैसे जैसे वो visualization में that mental picture that you have formed of your kitchen counter, that will help you to recall the items that are on your grocery list, and then you can put them in your cart and buy them. Yeah. Next is mnemonics. Of course ये बहुत ज़्यादा prominent है, especially in things like economics and history. ठीक है, वहाँ पे जब बहुत सारे points आते हैं, this is the best way. Mnemonics क्यों improve करते हैं memory? एज वी सो, जो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी रहता है, वर्किंग मेमोरी, दैट कैन ओनली रिमेंबर आइटम्स अप्रोक्सीमेटली 7 या फिर 5 to 9 के रेंज में। तो अगर हम लोगों को 15 पॉइंट्स याद करने हैं तो वील टेक अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक टाइम पे मैक्सिमम 9 आइटम्स ही याद कर सकते हैं। तो इंस्टेड व्हाट यू कैन डू इज चंक देम टुगेदर, या फिर यू कैन ब्रिंग देम टुगेदर इन सिंपलर वर्ड्स। तो न्यूमोनिक्स वही तो करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी देखो, वी हैव द क्लासिक रॉइगबिव और विबग्योर न्यूमोनिक विच हेल्प्स अस टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ द कलर्स इन अ रेनबो। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, एक वर्ड में ही पूरा हो जा रहा है, रॉइगबिव और विबग्योर। इफ यू जस्ट रिमेंबर विबग्योर, बाकी सबका भी याद रहेगा। तो यहाँ पे कॉग्निटिव लोड कम ले रहा है, जिसकी वजह से we'll be able to use the cognitive load instead of just recognizing and everything, associations build करने में हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, इसके लिए ये जो चंकिंग वाला प्रोसेस रहता है जो न्यूमोनिक्स बनाने में हेल्प करता है, इट हेल्प्स विथ आवर मेमोरी। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग ऑफकोर्स लर्निंग वाले चैप्टर में किया था, उसमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेशनल कंडीशनिंग, ये सब देखा था हम लोगों ने, राइट। तो यहाँ पे ऑपरेशनल कंडीशनिंग वाला सबसे पहला पॉइंट है। ऑफ कोर्स क्या हो सकता है, व्हाट यू कैन डू इज आफ्टर यू स्टडी फॉर 1 hour यू कैन ट्रीट योर सेल्फ टू अ 15 or 20 minute ब्रेक। तो एक री हो गया, दैट विल हेल्प योर मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट इज लिंकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रीवियसली लर्न मटीरियल इम्प्रूव्स रिट्रीवल, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ओके, देन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ये सब कैसे यूज कर सकते हो, ऑपरेशनल कंडीशनिंग समझा, बट हाउ क्लासिकल कंडीशनिंग, लेट्स से दैट यू वांट टू कंडीशन योरसेल्फ टू स्टडी बेटर, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। व्हाट विल हैपन हियर, तुम क्या कर लो, whenever you feel very motivated to study, at that time you listen to white noise, okay, and over time, okay, तो यहाँ पे क्या है हमारा UCR, क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स is our desire to study, our motivation to study, okay, and हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, द वाइट नॉइज। देन ओवर टाइम जब ये प्रोसेस रिपीट करोगे तो व्हाट विल हैपन एट अ स्पेसिफिक period of time is whenever you listen to white noise you will get motivated to study,
ओके, दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? तो हमारा व्हाइट नॉइस क्या कर रहा है, दैट नाउ एक्ट्स एज अ कंडीशन स्टिमुलस एंड इट प्रोड्यूसेस ए कंडीशन रिस्पॉन्स ऑफ द मोटिवेशन टू स्टडी. ये आई डू नॉट रिकमेंड यू ट्राइंग एट ऑल, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड क्लासिकल कंडीशनिंग कैसे काम कर सकता है. सो दैट वॉज इट फॉर दिस चैप्टर. पूरा चैप्टर खत्म. पार्ट 1 वीडियो इज ऑलरेडी आउट. ये पार्ट 2 वीडियो है. आई होप दोनों वीडियोस अच्छे से समझी है. इफ यू हैव एनी डाउट्स ड्रॉप देम डाउन इन द कमेंट्स. आई विल बी श्योर टू रिप्लाई. यू कैन चेक एनी कमेंट. मैंने हर एक पे रिप्लाई ऑलरेडी करके रखा है एंड आई टिपिकली रिप्लाई विद इन अ फ्यू आवर्स. योर डाउट्स विल बी सॉल्व इन अ jiffy. Okay, so just drop any of your doubts down in the comments. If you want these PPTs, you can get them on my WhatsApp channel, jiska link is in the description and in the pinned comment below. So that is it. All the best for your exams. If you like the video, please do like and click subscribe. It really keeps me going. All right, thank you so much for watching. All the best for your exams and bye bye.